Okay. So one of you said that there are three dynamic gender. Okay. So we will be looking into the aspects of gender and sexuality. So first of all, we need to define what is sexuality. And can anybody define what is sexuality? What do you mean by sexuality? Sexuality. Nobody have an idea. No one has an idea what is sexuality. Okay, so biological individuality of the person. Okay, so sexuality is basically defined as it is a central aspect of being human throughout life, and it encompasses sex, gender identities and roles, sexual orientation, eroticism, pleasure, intimacy, and reproduction. So basically, sexuality is influenced by interaction of multiple factors like biological factors, psychological factors, social factors, स्पिरिचुअल फैक्टर्स, ठीक है। सो ये ढेर सारी चीज़ें जब मिलती हैं तो एक वर्किंग डेफिनेशन सेक्सुअलिटी की बनती है, द वे पीपल एक्सप्रेस देमसेल्व्स सेक्सुअली, बायोलॉजिकल इंडिविजुअलिटी ऑफ पर्सन, ठीक है। नाउ the human sexuality depends on four things, and we will be discussing all those four things one by one. So let's have a look. Number one is sexual identity, second is gender identity, then sexual behavior, and then sexual orientation and gender. Difference between sex and gender. दोनों एक ही चीजें हैं या फिर डिफरेंट है? Difference or sex and gender. तो बता सकता है या सारे इस वक्त सोए हुए हैं? Is there a difference between sex and gender, or these two words are synonymous? अक्सर हम ये alternatively words use में, there's a difference. What is the difference? Do you have any idea if there is any difference? तो क्या difference है वो? Okay, let's have a look. What is the difference? So sexual identity is basically a biological
ओके तो मेरी आवाज नहीं आ रही, नेट का इशू चल रहा है। कहाँ बैठूं मैं? उधर बैठ जाऊं कहीं पे? एक मिनट ठहरो, ये मेरा नहीं, इधर बैठ जाऊं, इधर। अच्छा जी, जो सेक्सुअल आइडेंटिटी है, इट इज बेसिकली द बायोलॉजिकल आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, फॉर एग्जांपल, सबको मेरी आवाज आ रही है? Okay, so biological identity of an individual. It is determined by sex chromosomes and internal and external genitalia and hormones. ठीक है, और जब एक बेबी डिलीवरी होती है, ठीक है, तो उसको क्या होता है कि हम जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया हैं उनसे हम आइडेंटिफाई करते हैं द चाइल्ड इज अ मेल एंड अ फीमेल। ठीक है, सो दिस इज द सेक्सुअल आइडेंटिटी। We all know that the genitalia in both XX and XY embryos are initially female। ठीक है, सो जब एम्ब्रियो XY और XX होते हैं, इनके अंदर इनिशियल जो जेनिटेलियाज हैं दे आर फीमेल। What happens afterwards, the ovum with XX chromosome, it is fertilized. If it is fertilized with sperm who has X chromosome, then the embryo comes with XX. ठीक है, and there is the gonads are initially or usually for females। ठीक है, तो वहाँ पर वो ovaries में develop हो जाते हैं। But what happens with the Y chromosome? If the sperm comes with a Y chromosome, what happens is that there is a sex determining region of Y chromosome. It stimulates the production of androgens and antigen in the plasma membrane of the undifferentiated gonads, and thus this antigen directs differentiation of gonads into testes। ठीक है, तो ये जो है एक चीज आती है इसके अंदर कि इस तरीके से जो है जो इनिशियली जो फीमेल जेनिटेलिया थे दोनों एम्ब्रियोस के अंदर एक्स वाई और एक्स एक्स में, ये फर्दर जो है किस तरीके से मेल गोनेड्स में चेंज होते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू जेंडर आइडेंटिटी। तो आपने कहा है कि जी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल आइडेंटिटी एंड सॉरी जेंडर आइडेंटिटी। सेक्सुअल आइडेंटिटी हमने बता दी कि जो बायोलॉजिकल सेक्स होती है किसी भी एक इंडिविजुअल की, उसको हम which is determined by the chromosomes XX and XY, and we identify it through the external genitalia. Now, gender identity is basically how a person relates uh, belonging to a particular gender uh, in society. That is called gender identity. So, society जो आपको एक रोल देती है as a particular gender, that is your gender identity। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब बेबी पैदा हुआ तो अगर लाइक से उसके मेल गोनेड्स हैं तो पेरेंट्स उसको लेते हैं कि द बेबी इज अ बॉय, एंड दे स्टार्ट ट्रीटिंग द बेबी एंड ब्रिंगिंग अप द बेबी एज अ बॉय। ठीक है, और लाइक वाइज इसके आगे अगर फीमेल गोनेड्स हैं तो फिर उसकी जो ब्रॉट अप है वो एज अ फीमेल होता है। ठीक है, उसका ट्रीटमेंट एज फीमेल होता है। ठीक है, तो ये दो चीजें जो हैं ये जेंडर आइडेंटिटी बनाती हैं। जेंडर इज बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, not mainly characteristics, but it is actually what what role you give to that particular individual। ठीक है, जो हम एज अ सोसाइटी जो रोल उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को देते हैं कि वो इधर मेल है या वो फीमेल है, दैट इज जेंडर आइडेंटिटी। ठीक है ना, वो जेंडर आइडेंटिटी है। अगर आप देखें कि जो जेंडर आइडेंटिटी है इट यूजुअली सॉलिडिफाइज बाय द एज ऑफ 3। तो जो 3 साल का बच्चा है उसकी उसकी जेंडर आइडेंटिटी सॉलिडिफाई हो जाती है और उसको पता होता है कि इफ आई एम अ मेल आई विल बी प्लेइंग विद द कार्स। ठीक है, या हम जब उससे बातें करते हैं पेरेंट्स, ठीक है, तो पेरेंट्स उसको ये बताते हैं कि जी अच्छा बॉयज ऐसे करते हैं, बॉयज ऐसे नहीं करते, बॉयज ये करते हैं, बॉयज वो करते हैं। ठीक है, और लाइक वाइज फीमेल्स के लिए जो बच्चियां जो होती हैं उनको भी हम
जो पेरेंट्स का इंटरेक्शन होता है बच्चे के साथ, ठीक है, वो उसकी जो आइडेंटिटी है, जेंडर आइडेंटिटी, उसको सॉलिडिफाई करता जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। सो ये जो जेंडर आइडेंटिटी है, इट इज बेसिकली influenced by two main factors. One is the temperament of that particular child, and the other is the interaction of पेरेंट्स विद दैट चाइल्ड, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें उसको इन्फ्लुएंस करती हैं और जेंडर आइडेंटिटी बनाती हैं। अब ट्रांसजेंडर्स के साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि द सेंस ऑफ द जेंडर आइडेंटिटी डज नॉट एक्चुअली मैच विद द एक्सटर्नल अपीयरेंस और द क्रोमोसोम। फॉर एग्जांपल कि उनकी एक्सटर्नल अपीयरेंस अगर फीमेल की है, ठीक है, तो उनके जो माइंड के अंदर जो उनकी जेंडर आइडेंटिटी है वो मेल की है, ठीक है। तो वो दोनों आपस में उनका कॉन्फ्लिक्ट रहता है, ठीक है। उनकी जेंडर आइडेंटिटी कुछ और होती है कि वो अपने आप को समझते कुछ और है और बायोलॉजिकली वो कुछ और है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपस में मैच नहीं करती, जिसकी वजह से एक कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है उनका, ठीक है। नाउ देयर आर डिफरेंट जेंडर रोल्स जो सोसाइटी हमें देती है। फॉर एग्जांपल जो कल्चरल की सोसाइटी और कल्चर की एक्सपेक्टेशंस होती हैं मेल्स के लिए और फीमेल्स बिहेवियर के लिए, इंक्लूडिंग एटीट्यूड्स, एक्शंस एंड पर्सनालिटी ट्रेट्स। कि मेल्स का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, वो उनको किस तरह से बिहेव करना चाहिए, उनके क्या पर्टिकुलर पर्सनालिटी ट्रेट्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आप अगर मुझे बताएं कि व्हाट शुड बी द पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑफ मेल्स इन जनरल, जो मेजर मेजर बहुत ट्रेट्स होते हैं जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन होती है कि मेल्स के अंदर होने चाहिए। ब्रेव हों, और इसके अलावा और क्या चीज़ है जो उनके अंदर होनी चाहिए? अथॉरिटेटिव हो, यस, बिल्कुल सही है। और मेल्स के अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए जो सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है? डिसाइसिव हो, अग्रीड, एग्रेसिवली हो, बिल्कुल सही है। और फीमेल्स की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि हाउ शुड अ फीमेल बिहेव एंड व्हाट शुड बी द एटीट्यूड ऑफ अ फीमेल? पोलाइट होनी चाहिए, innocent है, sensitive है, and they are considered weak as compared to responsible, emotional, soft spoken। एक बिल्कुल सही है। ये सारी चीज़ें हैं जो फीमेल से एक्सपेक्ट की जाती हैं। और अगर कोई ऐसी फीमेल हो कि जो बहुत एग्रेसिव हो या उसके अंदर अथॉरिटेटिव ट्रेट्स हो, तो उसको स्नब किया जाता है या उसको क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये बिल्कुल लड़कों की तरह उसकी जो है वो हैबिट्स हैं या उसका एटीट्यूड जो है वो इस किस्म का है, ठीक है। सो बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस अगर हम देखें जेंडर आइडेंटिटी पे, तो वो हार्मोन्स और क्रोमोसोम्स के हैं। लेकिन एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस में मैंने जैसे कहा, जो पेरेंटिंग है, ठीक है, वो बड़ा मैटर करती है कि हाउ पेरेंट्स जो इंटरेक्ट विद दैट चाइल्ड, ठीक है। और जो सराउंडिंग्स हैं, जो सराउंडिंग्स में लोग हैं, इमीडिएट सराउंडिंग्स में, वो किस तरह इंटरेक्ट करते हैं उस चाइल्ड के साथ, और कल्चर क्या किस तरह से उस पर इन्फ्लुएंस करता है। क्योंकि कल्चर की एक्सपेक्टेशंस हैं कि लड़कियां जो हैं वो उनको इस तरह की एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रेसिंग करनी है, उन्हें अकेले बाहर नहीं जाना, ठीक है। और कोई भाई हो साथ तो वो जाए साथ, बेशक वो भाई छोटा ही हो, ठीक है। लेकिन ये है कि स्टिल कंसिडर किया जाता है कि नहीं जी, वो एटलीस्ट भाई तो है ना। हालांकि वो कुछ कर नहीं सकेगा, अगर खुदा ना खास्ता उस बहन के साथ कुछ हो जाए बाहर, तो वो भाई जो है उससे छोटा, वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन स्टिल इट इज रिक्वायरमेंट फॉर अ गर्ल टू हैव समवन विद हर व्हेन शी इज गोइंग आउट, ठीक है। तो ये कुछ एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस और बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस हैं जो बेसिकली जेंडर आइडेंटिटी को शेप अप करने में हेल्प करते हैं। नाउ अब आप अगर इस पिक्चर में देखें, तो आप देखेंगे कि गर्ल ने डॉल पकड़ी हुई है हाथ में, और जो बॉयज हैं वो भी कार्स के साथ, ट्रक्स के साथ, गन्स के साथ खेलते हैं, ठीक है। और फीमेल के जो जेंडर रोल्स हैं वो क्या है मेनली कि शी शुड नो हाउ टू क्लीन द हाउस एंड कुकिंग इज अ वुमेन्स जॉब, शी शुड मैरी एंड हैव फाइनली द किड्स, ठीक है। और जो मेन वर्किंग है वो मेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और ऑल लेडीज आर एक्सपेक्टेड टू बी लविंग एंड नर्चरिंग एंड जेंटल। तो ये सारे रोल्स जो हैं ये सोसाइटी ने दिए हैं। बच्चा जब पैदा होता है उसे नहीं पता होता है कि जी मेरा क्या रोल है सोसाइटी में, ठीक है। तो ये जो पेरेंटिंग है और सराउंडिंग्स है और कल्चर है, ये जैसा जैसा वो बच्चा बड़ा होता जाता है, तो ये सारे लोग जो है उसको उसके उसके बिहेवियर को शेप अप करते हैं या उसकी जेंडर आइडेंटिटी और जेंडर रोल्स को शेप अप करते जाते हैं। Now, other male and female gender differences क्या हैं? Number one is cognitive differences. So, जो males हैं, they have an advantage in mathematical and spatial skills. उनके mathematical and spatial skills बहुत अच्छे अच्छे होते हैं as compared to females, whereas females have superiority in verbal skills. Right? So, verbal means कि जो communication है, वो females बहुत अच्छा करती हैं।
आप अगर अपनी कोई परेशानी है किसी फीमेल को बताएंगे, ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से शायद उस चीज़ को समझ सके और उसको क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं वो कर सके, एड्रेस कर सके एज कम्पेयर टू मेल्स। और यही वजह है कि जब स्पेशली कपल्स की आपस में लड़ाई होती है तो फीमेल्स का एक इशू ये होता है कि जी वो जो हस्बैंड है या बॉयफ्रेंड है या जो भी है, ठीक है, जिसके साथ भी कमिटमेंट है, तो वो मेरी बात प्रॉपर सुनता नहीं है या वो उसको समझता नहीं है। सो ये चीज़ जो है एक बड़ी मैटर करती है कि देयर इज अ कॉग्निटिव डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल जेंडर। देन इमोशनल एक्सप्रेशन, इमोशनल एक्सप्रेशन जो मेल और फीमेल्स का फ़र्क है, ठीक है। मेल्स टेंड टू टॉक विद ईच अदर इन अ रिपोर्ट स्टाइल। रिपोर्ट स्टाइल का मतलब ये है कि मेल्स यूजुअली जब आपस में बात करते हैं किसी भी इशू के ऊपर तो वो टू द पॉइंट बात करते हैं, ठीक है। मतलब कोई इशू है तो उसके बारे में वो अपना प्रॉब्लम बताएंगे और उसका सॉल्यूशन बताएंगे और उसके अलावा इधर उधर की बात नहीं करेंगे, ठीक है। जबकि जो फीमेल्स हैं when they talk to each other in a relating style। मतलब वो अपनी स्टोरी किसी को सुना रही हैं या किसी की स्टोरी सुन रही हैं तो पहले तो वो पूरा उसका एक बैकग्राउंड बताएंगी, फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर इमोशंस भी डालेंगी, ठीक है। और फिर वो पूरी कहानी और अपने साथ रिलेट करके और साथ साथ उसके अंदर इमोशनल एक्सप्रेशन भी डाल के स्टोरी पूरी सुनाती है, ठीक है। तो ये एक हमारा जो है इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है फीमेल के अंदर कि बिकॉज दे आर मोर इमोशनल, ठीक है, और उनके अंदर इमोशनल एक्सप्रेशन भी ज़्यादा होता है, तो इसलिए जो है उनको कई दफ़ा सिंपैथी चाहिए होती है, उनका प्रॉब्लम होता है अगर आप उनको बताएं तो अगर वही एक बंदी जो है अगर वो अपना एक इशू एक मेल को बताएगी तो मेल क्या करेगा, मेल का फौरन से रिस्पॉन्स होगा कि वो एक सॉल्यूशन दे देगा, ठीक है, लेकिन उसकी जो इमोशनल नीड्स हैं उसको फुलफिल नहीं करेगा फीमेल की। लेकिन अगर वो और इसी वजह से वो तंग पड़ती है कि इसको समझ नहीं आ रही कि मैं किस टेंशन में हूँ, किस परेशानी में हूँ, या मुझे उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। लेकिन यही चीज़ अगर वो किसी फीमेल अपनी फ्रेंड को बताएगी, ठीक है, तो फीमेल उसको साथ सिंपैथाइज भी करेगी, हाँ बहुत बुरा हुआ, मुझे भी बड़ा बुरा फील हो रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड हाउ यू फीलिंग, ठीक है। तो फीमेल्स के लिए ये ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट होती है एज कम्पेयर टू द रिपोर्टिंग स्टाइल। ऐसा ही है, सब अग्री करते हैं मेरे साथ, ऐसा होता है। मेल्स की तरह मेल्स कुछ नहीं बता रहे कि ऐसा होता है कि नहीं होता उनके साथ, ये उन्होंने घर में देखा हो ऐसा होते हुए। और कोई डिफरेंस है जो आपको लगता है कि मेल और फीमेल जेंडर में हो सकता है? अच्छा, इतनी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ नहीं देखी अभी तक। चलो अच्छा ही नहीं देखी, फिलहाल इससे दूर ही हो। अच्छा जी, सो सम अदर डिफरेंसेस जो मेल्स और फीमेल्स के आते हैं, लेट्स से कि जो मेल्स जैसे हमने बात की कि स्पेशल स्किल्स उनके बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, फिर उसके अलावा जो टारगेट डायरेक्टेड मोटर स्किल्स हैं वो उनके काफ़ी अच्छे होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स, एंड दे आर गुड इन मैथमेटिकल रीजनिंग एज कम्पेयर टू फीमेल्स। वेयर एज अगर हम फीमेल्स की तरफ देखें तो वेमेन जो हैं उनको दे आर बेटर देन मेन ऑन टेस्ट ऑफ परसेप्शुअल स्पीड। फॉर एग्जांपल अगर ये आप देखें कि 4 हाउसेज हैं, उनसे कहा जाए कि जी इसमें से 2 सिमिलर और ट्विन हाउसेज हैं, वो आप बताएंगे कौन से हैं, तो मैं शायद फीमेल उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकेंगी, ठीक है। लाइकवाइज अगर आप जो है सम टेस्ट ऑफ आइडिएशनल फ्लुएंसी की बात करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि जी वो वर्ड्स को जो सेम लेटर से बिगिन हो रहे हैं, ठीक है, तो वो फीमेल्स जल्दी पिकअप कर लेती हैं, ठीक है। तो लाइकवाइज इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं, दोनों के अंदर डिफरेंसेस आते हैं। नाउ कमिंग टू द सेक्सुअल बिहेवियर, सो हमने जो है दो चीज़ें अभी तक की हैं, वन इज सेक्सुअल आइडेंटिटी एंड द अदर इज जेंडर आइडेंटिटी। तो एक दफ़ा मुझे थोड़ा सा जल्दी से बता देंगे व्हाट इज सेक्सुअल एंड व्हाट इज जेंडर। क्या समझ आई अभी तक? व्हाट इज सेक्सुअल आइडेंटिटी? सेक्स इज बायोलॉजिकल, agreed, and gender is
sense of male or female. So gender is basically cultural. Okay, gender is cultural, and sex is biological. Okay, given to the particular sex by society. Sexual identity बिल्कुल ठीक है. So gender is हमने कहा कि जो बाय सोसाइटी है, बाय कल्चर है, and sex is the biological uh, identity of the individual. Now coming to the sexual behavior. So what is sexual behavior? How do we behave towards sexuality? ये कौन गवर्न करता है, ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है. तो इसके लिए हम देखते हैं कि कौन इसको कंट्रोल कर रहा है. तो ब्रेन यूजुअली जो है, पहली बात ये कि ब्रेन कंट्रोल करता है हमारे सेक्सुअल बिहेवियर को. और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स ये है. तो मेनली सेरेब्रल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व इन रेगुलेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ सेक्सुअल डिजायर एंड स्टिमुलस, ठीक है. देन फर्दर मोर हम देख सकते हैं जो लिम्बिक सिस्टम है, जो इमोशंस जनरेट करने होते हैं, ठीक है. वो लिम्बिक सिस्टम, एमिगडाला जो है वो बेसिकली इमोशंस क्रिएट करता है. तो लिम्बिक सिस्टम इज इन्वॉल्व इन जनरेटिंग इमोशंस एंड सेक्सुअल डिजायर, ठीक है. अगेन जो ब्रेन स्टेम है, जो आपके स्पाइनल सेक्सुअल रिफ्लेक्सेस हैं, उनके ऊपर वो इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी कंट्रोल जो है वो ब्रेन स्टेम को होता है, ऊपर से आ रहा होता है कि जी अब ये इसको आप एक्साइट कर रहे हैं, स्पाइनल जो सेक्सुअल रिफ्लेक्सेस हैं, और या फिर आप इनहिबिटरी जो है पल्सेस भेजते हैं, ठीक है. एंड फाइनली स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड जो है उसके अंदर क्या हो रहा है कि जो सेक्सुअल अराउजल है और ऑर्गेजम जो है दे आर ऑर्गेनाइज्ड एट स्पाइनल लेवल, ठीक है. तो ये मेन चीज़ें हैं कि जो आपके देखने की हैं कि cerebral cortex mainly involved in the regulation and the processing of sexual desire. The limbic system is responsible for generating sexual emotions, seeking and sexual desire. Or the brain stem, it exerts inhibitory and excitatory control over spinal sexual reflexes. And then finally, spinal cord, it is responsible for the sexual arousal and orgasm at the spinal level. ठीक है. Sexual reflexes जो है वो mediate हो रहे होते हैं lumbosacral segment में, ठीक है. सर्विकल कॉर्टेक्स को और अगर हम थोड़ा सा इन डेप्थ देखें तो द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इज बेसिकली इन्वॉल्वड इन इनहिबिशन ऑफ सेक्सुअल इंपल्सेस, ठीक है. इनहिबिट करता है ये सेक्सुअल इंपल्सेस को, जबकि जो ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स है इट प्रोसेसेस द इमोशनल इनपुट फ्रॉम द एमिगडाला. तो जो आपकी लिम्बिक सिस्टम से जितने इमोशनल सेक्सुअल इमोशंस आ रहे हैं, ठीक है, जो orbitofrontal cortex है, it basically processes those emotional input, ठीक है. Then the right caudate nucleus activity, it working in the determination of whether arousal will lead to sexual activity or not. So at times what happens that there is arousal but it doesn't lead to sexual activity. So right caudate nucleus is basically involved in determination whether this arousal will lead to the sexual activity or not. And then finally, left anterior cingulate cortex, it plays in sexual arousal and hormonal control. Okay. Now, what are the brain neurotransmitters which are involved in all these sexual desire and the processing of the sexual desire and the stimuli? ये कौन सब कुछ कर रहा है? कौन से brain neurotransmitters हैं? कोई idea है आपको? कौन से neurotransmitters इसमें involve हो सकते हैं इस पूरी activity में? Oxytocin, very good. और इसके अलावा कोई हो सकता है? Oxytocin is a love hormone actually. बॉन्डिंग करता है. ईस्ट्रोजन सेरोटोनिन, ठीक है, बिल्कुल सही है. सो ऑक्सीटोसिन released following sexual activity. When two people have a sexual intercourse, it leads to bonding between the sexual partners as well as feelings of contentment, calmness and security, ठीक है. तो जो ऑक्सीटोसिन है ये सिर्फ पेरेंट और चाइल्ड के दरमियान की बॉन्डिंग नहीं कराता, बल्कि ये सेक्सुअल पार्टनर्स की भी बॉन्डिंग कराता है, ठीक है. जब सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो उसके बाद ये रिलीज होता है और जो एक सेंस ऑफ कामनेस आती है ऑर्गेज़म के बाद, ठीक है, तो वो चीज़ जो है वो हेल्प करती है दोनों पार्टनर्स को बॉन्ड करने में. देन डोपामीन इंक्रीज करता है सेक्सुअल डिजायर एंड फैसिलिटेट्स द अराउजल. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो कि आपके सेक्सुअल डिजायर को इंक्रीज करेगा. जबकि इसके ऑपोजिटली अगर आप सेरोटोनिन को देखें तो सेरोटोनिन जो है इट बेसिकली इनहिबिट सेक्सुअल अराउजल. सो वो लोग जो कि क्लिनिकली डिप्रेस्ड होते हैं कि उनके अंदर सेरोटोनिन का लेवल काफ़ी हाई होता है, ठीक है, तो दे डोंट फील लाइक हैविंग सेक्स बिकॉज दे डोंट हैव एनी सेक्सुअल डिजायर एंड the sexual arousal is being inhibited by the excess of serotonin that is being circulated in their blood.
एंड अदर्स आर नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन। इसके बाद आपने सीखने ईस्ट्रोजन का नाम लिया कि जो ईस्ट्रोजन जो है वो भी हेल्प कर रहा है इस और सारी एक्टिविटी के अंदर। सो सबसे पहले तो टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज करता है सेक्सुअल डिजायर इन बोथ मेन एंड वुमेन, ठीक है। और उसके बाद जो है estrogen, it leads to increased sensitivity to stimulation and lubrication caused by arousal। तो ये टेस्टोस्टेरोन का तो मेन रोल जो है सिर्फ सेक्सुअल डिजायर के साथ है, लेकिन ईस्ट्रोजन फर्दर आगे क्या करता है कि जब अराउजल होता है तो अराउजल के बाद जो आपके एक्सटर्नल जेनेटेलिया हैं, ठीक है, वहाँ पे जो लुब्रिकेशन होती है उसको और सेंसिटिव कर देता है, ठीक है, स्टिमुलेशन से। और प्रोजेस्टेरोन जो है ऑन द अदर हैंड इट डिक्रीजेस द सेक्सुअल डिजायर सो एज कॉर्टिसोल एंड एक्सेसिव प्रोलैक्टिन। तो आपने देखा होगा कि जो आपके प्रोलैक्टिन यूजुअली जब मदर्स जो ब्रेस्ट फीड करवा रही होती हैं तो उनके अंदर एक्सेसिव प्रोलैक्टिन बॉडी में होता है, तो एट टाइम्स उनकी सेक्सुअल डिजायर भी डिक्रीज होती है और वो उस टाइम पीरियड में कई दफ़ा कंसीव भी नहीं कर पाती, ठीक है। सो ये जो चीज़ें हैं ये ये सारे हॉर्मोन्स जो हैं ये सब एक्ट कर रहे हैं और आपकी जो है what is happening with Amna Basit and Ahmed Ali Khalid। ये सारे हॉर्मोन्स जो हैं एक्ट कर रहे हैं। ओके, नाउ कमिंग टू दी मैम अटेंडेंस हो रही है, अच्छा अच्छा दिस इज अटेंडेंस, ठीक है। तो अटेंडेंस तो आपकी वैसे नहीं हो जाती जब आप ऑनलाइन आते हैं और जितने लोग साइन इन कर रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन दी ह्यूमन सेक्सुअलिटी साइकिल, ठीक है। सो अब ये क्योंकि हम एंड में जो है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उससे पहले हम जो है बेसिक ह्यूमन सेक्सुअलिटी साइकिल की तरफ देखें कि वो किस तरह से चलता है, ठीक है, और क्या होता है उस साइकिल के अंदर। शुड आई फेड यू फॉर योर अटेंडेंस और मैं कंटिन्यू करूँ इसको? अच्छा, ओके। सो अब जो बेसिक एक जो स्टेजेस हैं ह्यूमन रिस्पॉन्स साइकिल के या ह्यूमन सेक्सुअलिटी की, ठीक है, वो 4 स्टेजेस हैं, ठीक है। स्टेज 1 इज एक्साइटमेंट, द बिगिनिंग ऑफ सेक्सुअल अराउजल प्रिपरेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर हो रही होती हैं। So stage 1 is basically characterized by sexual fantasies and desire to have a sexual activity। तो एक्साइटमेंट कैसे होती है किसी एक इंसान को जब वो सेक्सुअल डिजायर अगर उसके अंदर हो, ठीक है, तो हाउ टू स्टार्ट विद एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट ऐसे होगी कि if you start thinking about your sexual fantasies and desire to have a sexual activity, you start with the excitement phase or the यू कैन से द डिजायर फेज, ठीक है। तो इसके अंदर आपकी प्रिपरेशन हो रही होती है सेक्सुअल इंटरकोर्स की, ठीक है। एक्साइटमेंट होती है, आप सोचते हैं चीज़ों के बारे में और आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है, ठीक है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि सेकेंड स्टेज में जो है फिजिकल अराउजल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप करता है, ठीक है, जिसको हम प्लेटो की स्टेज भी कहते हैं, ठीक है। और
फिजिकल अराउजल कैसे बिल्ड होगा? फर्स्ट इनिशियली तो आपने साइकोलॉजिकली उसके बारे में सोचना शुरू किया, फैंटेसीज के बारे में, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता आपकी एक्साइटमेंट बिल्डअप होनी शुरू होती है। लेकिन उसके बाद अब ये एक्साइटमेंट जो है इट लीड्स टू प्लेटो, दैट इज द फिजिकल अराउजल, psychological arousal leading to the physical arousal. Now, how this plateau physical arousal comes up? Either you have a psychological stimulation, जैसा हमने बात की कि fantasy or presence of love object. So if you start thinking about your, either you have fantasies, you start thinking about them, or you have a love object and you start thinking of that love object. For example, if you have a wife, you have a fiance, you have a girlfriend, whatever you have, and you start thinking about that particular person whom you're in love with, ठीक है, तो वो जब आप सोचना शुरू करते हैं तो आपको साइकोलॉजिकल स्टिमुलेशन मिलती है, ठीक है. And other is physiological stimulation. So how physiological stimulation comes up either through stroking or kissing. So you start touching the love object, ठीक है, you start kissing, you can start with the stroking, so whatever you do, or in short you can say the foreplay. In sexual activity there always it is good to have a foreplay. The foreplay जो होता है जो दो पार्टनर्स के दरमियान होता है जिसमें वो एक दूसरे को जो है वो टच कर सकते हैं और they can kiss each other, ठीक है, that helps in the physical arousal for both partners. कि फिजिकल अराउजल में क्या होगा कि जो है वो लुब्रिकेशन होगी, increase sensitivity to that lubrication होगी both males and females के अंदर, ठीक है, and it can help to build up that physical plateau and arousal, ठीक है. एंड देन कम्स द स्टेज थ्री. तो स्टेज थ्री बेसिकली जो ऑर्गेजम की स्टेज है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या हो रहा होता है कि जैसा जैसा एक्साइटमेंट डिजायर, डिजायर के बाद आपकी बॉडी फिजिकली स्टिमुलेट होना शुरू होती है, ठीक है, और ऑर्गेजम की स्टेज के अंदर जो है वो जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, जो ब्लड वेसल्स इंगोर्ज होना शुरू हो जाती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं जेनिटेलिया की, ठीक है, और आपके जो जेनिटेलिया होते हैं उनके अंदर ब्लड एकदम से रश करता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, सो दे गेट हार्ड, ठीक है, और बोथ मेन एंड वुमेन डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस ऑफ ऑर्गेज्म इन सिमिलर एंड पॉजिटिव टर्म्स. ऑर्गेज्म इज ऑलवेज हेल्दी, ठीक है, और एक हैप्पीनेस लेके आता है, ठीक है. Usually, a vast majority of men experience only one intense orgasm at one point of time. Okay? But women, it is said that women are capable of experiencing multiple orgasms at one point of time. ठीक है? और मेल्स जब ऑर्गेजम होता है तो मेल्स का ऑर्गेजम कैसे पता चलता है कि दे एक्चुअली ejaculation होती है, while females they experience vaginal contractions. तो ये जो एक स्टेज जो है, ये सेंस ऑफ सेरेनिटी और कामनेस और सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस और सेंस ऑफ वेलबींग, ये सारी चीजें लेके आती है ऑर्गेजम की स्टेज. बहुत शॉर्ट होती है, शॉर्टेस्ट फेज है ये. एक्साइटमेंट में भी एट टाइम्स लोगों को बहुत टाइम लगता है, प्लेटो में भी टाइम लगता है, और ज़रूरी नहीं है कि प्लेटो के बाद जो है वो ऑर्गेजम तक बंदा जाए, कई दफ़ा ऑर्गेजम तक नहीं भी आप पहुंच पाते, ठीक है. सो जो है orgasm जो है it is the shortest phase of that particular all cycle, ठीक है जी. उसके बाद we come to the last stage which is called the resolution. So resolution में क्या होता है कि जितनी आपकी engorgement हुई थी blood vessels की genitalia में, the heart, ठीक है, and it helped in the sexual intercourse, ठीक है, वो चीज़ जो थी अब आहिस्ता आहिस्ता जब आप orgasm से orgasm होता है, ठीक है, तो when you once you get relaxed, so there is a disengorgement of blood from the genitalia, and if orgasm occurs then resolution is rapid. जैसा हमने कहा ना कि orgasm जो है बहुत short stage है, ठीक है, short stage होती है, और उसके बाद फौरन से पहले resolution की phase आती है, ठीक है, and it is characterized by sense of well-being, muscular relaxation, happiness, calmness, security, satisfaction, ये सारी चीज़ें जो है resolution के अंदर आती हैं. And arousal slowly subsides and returns to the normal level. So जितनी body intense हुई होती है और जितनी वो physiological stimulation मिली होती है एक individual body को, वो सारी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो subside कर जाती है, ठीक है. अब होता क्या है कि after orgasm usually men have a refractive period. There's a particular time period in which they are unable of having another erection or orgasm, ठीक है,
फौरन से if the other partner wants to have another particular orgasm, men usually have issue with that. They don't actually are able to again go for another erection or orgasm, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर एक इनबिल्ट रिफ्लेक्टिव पीरियड है, ठीक है, जिसमें वो नहीं कर पाते. दे स्टार्ट गेटिंग ड्राउजी, दे वांट टू स्लीप और व्हाटएवर, ठीक है, क्योंकि वो इतनी कामनेस और एक क्या कहते हैं रिलैक्सेशन होती है, मस्कुलर रिलैक्सेशन होती है. बट ऑन द अदर हैंड फीमेल्स के साथ क्या होता है, अच्छा, ये जो रिफ्लेक्टिव पीरियड है ऑर्गेज्म का, इट कैन लास्ट फॉर सेवरल मिनट्स टू मेनी आवर्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें ये भी हो सकता है, कुछ मिनट्स का टाइम भी हो सकता है रिफ्लेक्टिव पीरियड का, और जो है मेनी आवर्स तक भी ये बात जा सकती है. तो इट इज़ एन इंडिविजुअल वेरिएशन एंड इट कैन वेरी फ्रॉम मैन टू मैन, मैन टू मैन, ठीक है. वेयर एज जो फीमेल्स हैं उनके अंदर रिफ्लेक्टिव पीरियड कोई नहीं होता, ठीक है, and they are capable of multiple and successive orgasms at one point of time, ठीक है. तो जैसा हमने कहा कि जी मेल्स जो हैं के अंदर एक ही यूजुअली इंटेंस ऑर्गेज्म होता है एक वक्त के अंदर, और उसके बाद उनको कुछ टाइम चाहिए होता है दोबारा से जो है वो उसी एक्साइटमेंट और प्लेटो के फेज में जाने के लिए. जबकि जो फीमेल्स हैं उनके लिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है, और उनको एक तो ज़रूरी नहीं है कि ऑर्गेज्म हो, ठीक है, ये भी ज़रूरी नहीं है, और दूसरा लेट्स से अगर होता भी है तो दे कैन हैव अनदर ऑर्गेज्म राइट अवे, ठीक है. सो इसलिए जो है ये चीज़ इतनी ये डिफरेंस है थोड़ा सा मेल्स और फीमेल्स में, ठीक है. अच्छा, अब आप अगर ये नीचे दो पैटर्न्स देखें तो मेल्स का जो है टिपिकल एक मेल सेक्सुअल रिस्पॉन्स है जिसके अंदर आप ग्राफ देखते हैं कि जी एक्साइटमेंट बिल्डअप होती है, ठीक है, देन कम्स अ प्लेटो. प्लेटो में आप कुछ ऐसा थोड़ी देर रहते हैं जिसमें फिजिकल अराउजल हो रहा होता है, ठीक है, सारा. उसके बाद ऑर्गेज्म की स्टेज आती है, ठीक है. ऑर्गेज्म एकदम से एक्साइटमेंट बिल्डअप हुई, एंगोजमेंट हुई ब्लड वेसल्स की जेनिटेलिया में, मेल यूजुअली गेट्स हार्ड, ठीक है, एंड देन they they have an orgasm and they ejaculate. Once they ejaculate, what happens, फौरन से पहले रेजोल्यूशन होता है, सेंस ऑफ कामनेस, रिलैक्सेशन एंड एवरीथिंग लाइक, और डिसएंगेजमेंट हो जाती है ब्लड की, ठीक है. ये टिपिकल मेल रिस्पॉन्स है. मेल में कोई डबल ट्रिपल कोई ऐसी चीजें डिफरेंस नहीं आता है. जब अगर फीमेल्स हम देखें तो फीमेल्स के अंदर आप देखें कि देर आर यूजुअली थ्री बेसिक वेरिएशन हैं जो फीमेल्स के अंदर होती हैं. एक आपके सामने ये ऑरेंज लाइन है, ऑरेंज रिस्पॉन्स नजर आ रहा है, वन जिसमें एक्साइटमेंट हुई, एक्साइटमेंट के बाद प्लेटो, प्लेटो में वो काफी देर गुजारती हैं. फीमेल्स का जो फिजिकल अराउजल है इट टेक्स यूजुअली टाइम एज कम्पेयर्ड टू मेल्स. फिजिकल अराउजल में उनका टाइम लगता है, इतनी जल्दी वो आता नहीं है, ठीक है. सो यू नीड टू कीप ऑन चेकिंग विद देम वंस यू आर इन्वॉल्वड इन सेक्सुअल एक्टिविटी, ठीक है. और उसको आपको थोड़ा सा उसके अंदर एफर्ट करनी पड़ती है. उसके बाद प्लेटो के बाद एकदम से ऑर्गेज्म की बारी आती है, और ऑर्गेज्म आप देख रहे हैं कि इसमें ऑर्गेज्म एक नहीं हो रहा है, इसमें ऑर्गेज्म जो है वो एक ऑर्गेज्म हुआ, उसके बाद फिर एकदम एक दूसरा ऑर्गेज्म हुआ, एंड देन इट गोस टू द रेजोल्यूशन फेज, ठीक है, फिर वो खत्म हो जाता है. तो देयर आर टू ऑर्गेज्म्स. देन देयर इज अ सेकंड रिस्पॉन्स जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि जो एक्साइटमेंट है, एक्साइटमेंट पर प्लेटो है, प्लेटो के बाद यानी कि वो फिजिकल अराउजल तक ही चलता रहा और फिजिकल अराउजल नहीं रहा, ऑर्गेज्म तक बात गई नहीं है, तो इट कैन हैपन आल्सो, और वो फिजिकल अराउजल से ही फाइनली दोबारा ये पूरा साइकिल खत्म हो गया, ठीक है. और जो थर्ड फेज है उसके अंदर क्या हो रहा है कि उसके अंदर जो है ये क्या नाम है इसका, जो है एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट में भी थोड़ा सा टाइम लगा, ठीक है. और एक्साइटमेंट के बाद एक्साइटमेंट और प्लेटो के दरमियान ज़्यादा जो है वो टाइम नहीं है, ठीक है, बल्कि एक्साइटमेंट में थोड़ी सी आप ऊपर जा रही है और उसके बाद वो डायरेक्ट जो है ऑर्गेज्म तक आई है, और उसके बाद यानी कि ये काफ़ी शॉर्ट सा फेज था. अगर आप बाकी वन और टू के साथ थर्ड को कंपेयर करें तो आप देखें कि ये जो ऑर्गेज्म है ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम का है, ठीक है. ये पूरा साइकिल बहुत शॉर्ट है, एक्साइटमेंट प्लेटो और उसके बाद साथ ही ऑर्गेज्म, एंड दैट्स इट. एज कम्पेयर टू द वन एंड टू, वन में आप मल्टीपल ऑर्गेजम्स देख रहे हैं और टू में आप देख रहे हैं कि ऑर्गेज्म हो ही नहीं रहा, ठीक है, वो प्लेटो के बाद जो है रेजोल्यूशन की तरफ जा रही है चीज. तो ये थ्री बेसिक वेरिएशंस हैं जो हमें फीमेल्स के अंदर नजर आती हैं. इसके अलावा और भी हो सकती हैं कि लेकिन मेजॉरिटी फीमेल्स के अंदर इधर देयर इज वन, देयर इज टू और देयर इज थ्री, ठीक है. तो ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है. एनी इशू विद ऑल दीज थिंग्स अप टिल नाउ, की चीजें जो समझ नहीं आई हुई?
So everything is clear up till now. Okay, so now gender differences in sexual behavior. अब जो सेक्सुअल बिहेवियर है, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल का, जिसके बारे में हमने अभी बात की है, विच इज बेसिकली इन्फ्लुएंस, सेक्सुअल बिहेवियर इज डिटरमिन्ड बाय द ब्रेन, द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, द लिम्बिक सिस्टम एंड देन द स्पाइनल कॉर्ड, ये सारी बातें हमने भी की हैं, ठीक है। अब जेंडर डिफरेंसेस क्या हैं सेक्सुअल बिहेवियर के अंदर? सो मैन एंड वुमेन बोथ एक्सपीरियंस सेक्सुअल डिजायर, ये बात तो पहले हम मान लेते हैं कि जी ऐसा नहीं होता कि जो फीमेल्स कहें कि जी we don't experience a sexual desire, or males if they say that we don't experience a sexual desire, then either they are wrong or they may have some pathology. So normally जो individuals हैं उन सब के अंदर जो है एक सेक्सुअल डिजायर होती ही होती है, but there's a difference between males and females. So what is the difference? Males tend to experience a greater frequency of sexual thoughts and readiness to engage in sexual activity. So we usually see कैसे होता है कि males जो है उनके अंदर एक ज़्यादा frequency होती है sexual thoughts की, और they are more ready to engage in a sexual activity. Whereas what happens with females, females usually like to engage in sexual contact for some other reasons. It is not necessary that they do have a sexual desire and then they involve in a sexual activity. At times, they involve a sexual activity with for some other reasons. For example, they want to please their partner, they want to maintain the interest of their partner in them, ठीक है। so at times अगर फीमेल जो है, अगर वाइफ जो है वो नहीं उसका दिल कर रहा है या उसके अंदर अभी सेक्सुअल डिजायर नहीं है, वो एक्सपीरियंस नहीं कर रही, तो कई दफा द हस्बैंड सेज दैट ही वांट्स टू हैव अ सेक्सुअल एक्टिविटी, she involves in that sexual activity just because she doesn't want the husband to go away from her or to lose interest in her, ठीक है। और इसके लिए एट टाइम फिजियोलॉजिकल अराउजल भी कई दफ़ा नहीं होता फीमेल्स के अंदर, ठीक है। और यही वजह है कि आपने अक्सर सुना होगा कि जी पोस्ट पार्टल टीयर्स के साथ फीमेल्स जब शादी होती है तो जी फर्स्ट नाइट में वो ऐसे अल्लाह माफी जानवरों की तरह जो मेल्स हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव एक्चुअली द राइट अमाउंट ऑफ नॉलेज हाउ थिंग्स आर बीइंग डन एंड हाउ थिंग्स एक्चुअली वर्क, तो उनका ख्याल होता है कि नहीं जी दिस इज जस्ट something which needs to be done right in the first night, and if they won't do it then it will become shame for them, ठीक है। तो ये एक बड़ी बड़ी weird सी हमारी कल्चरल एक एस्पेक्ट है इस वक्त, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है कि कई दफ़ा क्योंकि वेरी फर्स्ट नाइट पे अगर दोनों ही बिल्कुल एक दूसरे को जानते नहीं है, तो दोनों फीमेल यूजुअली घबराई भी होती हैं, डरी भी होती हैं, ठीक है। So they need to be relaxed and calm down, and there must be a foreplay, or there should be looked into if she has a desire at the moment of having a sexual activity or not. And if she doesn't have a desire and the male pushes himself in her, then what happens? Usually there is no physiological arousal, there is no stimulation, there is no lubrication which can help in the sexual activity, and thus they end up in postcoital tears or trauma to the vaginal activity and stuff like that. तो इसलिए जो है, और फीमेल बेचारी जो होती है क्योंकि वो चाह रही होती है कि जी हस्बैंड है तो मैं इनकार ना करूं, या फर्स्ट नाइट है या इवन आफ्टर दैट, तो वो जो है वो उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। मेन एंड वुमेन डिफरेंट डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ड्राइव, हमने कहा कि सेक्सुअल डिजायर तो दोनों के अंदर है, ऐसा तो है नहीं कि सेक्सुअल डिजायर ना होती हो, लेकिन ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल, जैसे भी बात की है कि मेल्स जो हैं उनकी सेक्सुअल डिजायर ज़्यादा होती है, और जो फीमेल्स हैं उनकी एट टाइम्स वो इन्वॉल्व हो जाती हैं सेक्सुअल एक्टिविटी में विदाउट हैविंग अ सेक्सुअल डिजायर, और उनके कुछ कल्चरल रीजंस हैं, ठीक है। अच्छा, अब सेक्स ड्राइव की जो इशू है, कितनी सेक्स ड्राइव है, कितनी मेल्स की कितनी सेक्स ड्राइव है और फीमेल्स की कितनी सेक्स ड्राइव है। तो मेल्स की सेक्स ड्राइव जो है बेसिकली इट इज बायोलॉजिकली डिटरमाइंड। टेस्टोस्टेरोन क्योंकि हमें पता है कि मेल्स के अंदर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स, तो और सो हम कह सकते हैं कि दैट particular hormone is mainly responsible for the sex drive of the females, and that's why it is usually seen that they are more readily engaged and they are usually uh, they want to they're ready to engage in particular sexual activity, whereas in women different factors are involved. For example, cultural background, what is the cultural background of that woman,
ठीक है, उस किस कल्चर से वो बिलोंग कर रही है, उसकी एजुकेशन क्या है, उसका रिलीजन क्या है, और उसकी पेरेंटिंग कैसे हुई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि बहुत ही कल्चर ऐसा है कि जिसके अंदर because it is a taboo to talk about the sexual things in our particular culture. Parents do not talk to their sons, fathers do not talk to their sons, mothers don't talk to their daughters before when they are getting married about all these things, but this is very important. ठीक है, और उनका ख्याल है, और उसकी वजह इससे होता क्या है कि यूजुअली बच्चे जो हैं वो यूजुअली गलत इंफॉर्मेशन ले लेते हैं सोसाइटी से. It's always better for the father to talk to his son. What should be done, what should not be done, how to look after the wife, how to look after the needs of the wife. ठीक है, इसी तरह से जो mothers हैं उनको अपनी बेटियों से इस बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए. So when you are from a particular cultural background, when there is a taboo to talk about sex and talk about the sexual activity and stuff related to that, then the sex drive do have an effect. जो है वुमेन के ऊपर, कि वो शायद उनको इतना सप्रेस किया जाता है कि वो इस बारे में सोचना भी उनको गुनाह लगता है एट टाइम्स. इवन देखे हैं हमने, बहुत ऐसे केसेस देखे हैं कि जिसमें फीमेल्स कहती हैं कि अब वो बेचारियों को प्रॉब्लम होती है, वो आती हैं, लेकिन मतलब वो कहती हैं कि हमने कभी, हमारे घर वालों ने या हमारी मदर ने हमसे कभी इस बारे में बात ही नहीं की और हमें पता ही नहीं चीज़ों के बारे में. ठीक है, और या फिर उनके पास गलत इन्फॉर्मेशन होती है जो जरूरी नहीं इंटरनेट से और सोसाइटी से उनको मिलती है, या इर्द गिर्द के जो रिलेटिव्स होते हैं उनसे मिलती है. ठीक है, रिलीजन, जो बहुत रिलीजियस फैमिलीज होती हैं, अगेन वहाँ पर इसके बारे में बात करना बहुत वियर्ड समझा जाता है. और अगर किसी की सेक्स ड्राइव ज़्यादा है या अच्छी है, ठीक है, तो वो उसको बताते हुए यूजली शेम महसूस होती है, शर्म महसूस होती है कि कहीं अगर मैं किसी को बताऊंगी कि आई फील द डिज़ायर टू हैव सेक्स, तो वो तो सब मेरे ऊपर फतवा लगा देंगे और मुझे बुरा भला कहेंगे कि इसको शर्म नहीं आती है इस बारे में बातें करती है. ठीक है, और पेरेंटिंग, क्या आपकी पेरेंटिंग कैसे हुई है, स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग है, लीनियंट पेरेंटिंग है, अंडरस्टैंडिंग पेरेंटिंग है. सो दीज ऑल फैक्टर्स जो है दे इन्फ्लुएंस द सेक्स ड्राइव ऑफ द वुमेन. ठीक है, ओके. कमिंग टू द टर्म मैस्टरबेशन. सो मैस्टरबेशन के बारे में क्या जानते हैं? कॉमनली यूज्ड वर्ड है. ठीक है, आई थिंक वी शुड नॉट बी hesitant in talking about it. So what do you mean by masturbation? क्या होता है masturbation? सेल्फ प्लेयर, ठीक है. और how do you get that self player? कुछ खा पी के सेल्फ प्लेयर लेते हैं? How do you get self player? Instrumental player. But how do you get a self player? There must be some way of getting the self player. What people usually do during masturbation? कहाँ चले गए सारे लोग? People use toys. Okay. Also, pornographic substance may be involved. Agreed. Okay. So yes, so कुछ there are some ways to get the player. There could be fantasies. ठीक है. So masturbation is basically it is the physical stimulation of genitalia by oneself for sexual pleasure. So self pleasure जो है, आप actually sexual pleasure की बात कर रहे हैं. ठीक है. You get sexual pleasure, and how do you get sexual pleasure? You physically stimulate your genitalia by yourself. ठीक है. और इसके थ्रू जो एक नॉर्मल जो एक आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी है जिसमें दो पार्टनर्स का होना ज़रूरी है. ठीक है, और दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को एक्साइट करते हैं. इसके अंदर देयर इज नो पार्टनर, बट व्हाट यू डू इज यू फिजिकली स्टिमुलेट योर ओन जेनिटेलिया बाय वन सेल्फ फॉर सेक्सुअल प्लेयर. ठीक है, so this activity is considered normal. ठीक है, it is a normal part of psychosexual development, and but
it is rooted in shame and mystery. People doesn't want to talk about it. They doesn't want to admit that they are involved in masturbation. ठीक है, so ये इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें की जाती हैं और बहुत सारे myths हैं जो एक culture के अंदर, especially Indo-Pak culture में involved हैं. It can lead to low virility. It can lead to impotence. It can lead to mental health issues in men. So multiple things are there. क्या कि इसके बारे में जो वो मिथ्स क्रिएट हुए हैं इसके कल्चर के अंदर, ठीक है. और नियरली ऑल पोस्ट प्यूबर्टल मेल्स एंड अबाउट 1/3/4 ऑफ द फीमेल्स यूजुअली आर इन्वॉल्वड इन इट. सो ये रिसर्च सेज दैट कि जो मेल्स हैं उसमें नियरली ऑल जो पोस्ट प्यूबर्टल मेल्स हैं दे आर इन्वॉल्वड in masturbation and up to 3/4 of the females. So the 1/4 हैं कि जो नहीं involved होती but 3/4 of the females are also involved in it. ठीक है. And it is something which is very much considered normal as a psychosexual development. Now, coming to sexual orientation. Okay, so there were four factors that initially learned. One was sexual identity, then gender identity, and then sexual behavior, and then the last one is sexual orientation. So, what do you mean by sexual orientation? किसी को कुछ पता है कि sexual orientation क्या होती है? What we are attracted towards. Agreed. बिल्कुल सही बात है कि as a human being attracted sexually. ठीक है. सिर्फ ये नहीं है कि आप ऐसे ही किसी से attract हो रहे हैं. So the word sexual needs to be added in that. When you are attracted sexually towards whom you are attracted sexually towards. ठीक है. किसको आप हो रहे हैं, किससे attract हो रहे हैं. So if you are a female, if you are attracted towards male sexually, or you are attracted towards female sexually, or whether you are attracted towards transgender sexually. तो जो पर्सन की फीलिंग्स और इंटरेस्ट हैं, सेक्सुअल फीलिंग्स और इंटरेस्ट, ठीक है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. ठीक है. तो जो सेक्सुअल पर्सन सेक्सुअल अट्रैक्शन प्रेफरेंस फॉर मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्स इज कॉल्ड सेक्सुअल ओरिएंटेशन. And statistics suggest that about 1 to 5% of the population of the world has different sexual orientations besides heterosexual. So usually 95% of the population जो है, they have a sexual orientation of heterosexual, whereas the 5% remaining 1 to 5% they have different sexual orientations. तो कौन-कौन सी sexual orientations exist करती हैं इस वक्त वर्ल्ड के अंदर, बता सकते हैं कौन-कौन सी sexual orientations हैं? Homosexuals which are attracted toward the same sex, or heterosexuals which are attracted towards same or opposite. Asexuals. Asexuals कौन से होते हैं? Asexuals जो है वो सेम सेक्स के साथ रिलेटेड है. Asexuals are no attraction is asexual. Agreed. बिल्कुल ठीक है. तो एक आपने होमो की बात की. बायसेक्सुअल्स कौन से होते हैं? बायसेक्सुअल्स कौन से होते हैं? जियोनाजा. बायसेक्सुअल्स कौन से होते हैं? Attracted towards both genders. ठीक है. Okay. So homosexuals हमने आपने बता दिया. The sorry, heterosexuals person attracted to the opposite sex, male to female, female to male. Homo attracted to the same sex. For example, female to female is called lesbian, and male to male is called gay. Okay. Then bisexuals person attracted to both men and women. So if a one person there's a male, the male is attracted towards males and females both. Asexual, there is no sexual attraction towards any gender. कोई उनकी sexual attraction है ही नहीं किसी के साथ. और pan, queer और polysexuals, ये तीनों चीजें एक ही हैं. Either they can be called pansexuals, or they can be called polysexuals, or they can be called queers. And these people call themselves as gender blind.
बिकॉज दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पीपल रिगार्डलेस ऑफ देयर सेक्स एंड जेंडर आइडेंटिटी। ठीक है, ये वो लोग हैं कि जिनको फर्क नहीं पड़ रहा कि अगले की बायोलॉजिकल सेक्स क्या है, अगले की जेंडर आइडेंटिटी क्या है, सो दे कैन बी अट्रैक्टेड both male, female, transgender, asexual, whatever, मतलब जो भी मिल जाए, they don't have an issue with that। ठीक है, so ये वो लोग हैं कि जो pansexual, queer और polysexual होते हैं। ठीक है, so ये हमारे पास 5 जो हैं वो sexual orientations इस वक्त exist करती हैं। ठीक है, ये डिफरेंट साइंस हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज होते हैं, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, ठीक है, हेट्रो है, गे है, लेस्बियन है, बायसेक्सुअल है एंड एसेक्सुअल है। ठीक है, ओके। तो डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन कैसे होती है? एक तो ये है कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यू नीड टू कम टू टर्म्स विद द आइडेंटिटीज। नंबर वन, कि व्हाट इज योर आइडेंटिटी, व्हाट इज योर जेंडर आइडेंटिटी, व्हाट इज योर सेक्सुअल आइडेंटिटी। The other thing is that जो हमारी upbringing और environmental experiences हैं, they can also have an influence on the sexual orientation. And then again biological differences in brains, जो biological जो researches बताती हैं कि जी जो brain होता है homosexual और heterosexual males के, इनके अंदर थोड़े से biological differences हैं। ठीक है, but again the research says that it is not authentic, और बहुत सारी researches पे काम हो रहा है इसके ऊपर, and still the homosexuals or the asexuals cannot advocate that because they have biological difference or they have genetic component, that's why they are like that। ऐसा नहीं है, क्योंकि environment का और upbringing का बहुत बड़ा रोल है जिसमें behavior को change किया जा सकता है, and once they know that this is wrong then they can change their particular sexual orientation। It is not that difficult। ठीक है, ओके, सो यहाँ तक आज ख़त्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्सुअल डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे और साथ एक और फर्दर टॉपिक पढ़ेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई इशू, कोई क्वेश्चन है जो कोई बताना पूछना चाहे, कोई क्वेरी किसी की? नो, देयर इज नो क्वेरी। जबरदस्त। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। इंशाल्लाह फिर बात होती है। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज।